Hi everyone, today we will learn the maxima and minima of a given function by using differential method. ठीक है, अब ये मैक्सिमा और मिनिमा है क्या? सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये होता क्या है. सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, तो हमने उस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. मैक्सिमा वैल्यू का मतलब क्या है कि उसकी लार्जेस्ट वैल्यू उस फंक्शन की क्या हो सकती है, और मिनिमा का मतलब क्या है कि उस फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बनेगी. और इसको हमने किससे सीखना है? इसको हमने सीखना है डिफरेंशियल मेथड से. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन. तो देखो, सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स. आपके पास क्या फंक्शन है? एक एफ एक्स फंक्शन है. अगर इस फंक्शन की मैं मैक्सिमा वैल्यू को, या मैक्सिमा का ग्राफ सबसे पहले देख लेते हैं कैसे प्लॉट करते हैं. अगर मैक्सिमा है तो देखो, सपोज करो आपके पास ये एक प्लॉट की मैं एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ. ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है? y axis है. It's a x and a y axis. If a function is going to be a maxima, it is going to be a maxima, then the graph we will get in the maxima case will be like this. So ये function है, ये ग्राफ कैसे? सबसे पहले इसके ग्राफ की वैल्यूज इंक्रीज करती जा रही हैं, और एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट पर, सपोज करो दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पर पहुंचने के बाद ग्राफ की वैल्यूज वापस क्या करनी शुरू हो जाएंगी? डिक्रीज. सो दिस इज हियर x0 is a maxima value. In this graph the x0 is a maxima value. और अगर हम यहाँ पर देखें, suppose this is the point A and this is a point B. बेटा इस पॉइंट के A और B के विद रिस्पेक्ट जितनी भी वैल्यूज होंगी अदर देन एक्स नॉट, दे विल बी व्हाट? दे विल बी स्मॉलर, क्योंकि एक्स नॉट इज द मैक्सिमा वैल्यू. All other values which are lying in a range of A and B, they will going to be a small. So beta this is known as a maxima graph, right? So अगर हम similarly we want to find out the maxima value of a given function with respect to a graph, okay, what we will do, and again this is a y axis and it's a x axis. If I want to plot a draw with respect to minima for a given function, graph will always be like this, right? And first of all the values are going to be decrease. Here the values were going to be increase, and after reaching maximum value the values were again decreasing. But in that particular case the values were first decreasing, reaching this point, and after this point. So this is the point where is the minima point of this graph. That is, again we will say it x naught. This is the minima value, and with respect to all other points in a region between A and B, the values will be larger than x naught. All other values will be larger. Where in that case x naught is the maximum value, here x naught will be the minimum value. So what I said कि maxima and minima of any function is the smallest and the largest value of that particular function. So here x naught is the maximum value, and here x naught is the minimum value or a smallest value, and here it is a maximum or a largest value. ठीक है. So now the next thing is, how can we find out the maxima and a minima of any function? तो अभी हम लर्न करेंगे इसे by using differential method. हम maxima और minima को कैसे find out कर सकते हैं for a given function. Now watch it carefully and try to learn every step. ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व इट केयरफुली. इट इज वेरी सिंपल. आप एक सम को अगर समझ जाओगे तो बाकी सबको कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा. तो नाउ सपोज आई हैव अ फंक्शन दैट इज, फंक्शन इज, सपोज करो यू हैव दिस फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24. Suppose this is the function they had given you in your exam, right? अब now look at this function one by one. हर स्टेप को ध्यान से समझो. अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा को निकालना है, मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज टेक अ डेरिवेटिव. टेक अ डेरिवेटिव
of given function. First step, take a derivative of given function. तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24. इफ आई कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव, व्हाट इट विल, सो डेरिवेटिव बच्चे इसका क्या बनेगा, दैट विल बी एफ डैश एक्स. इसका डेरिवेटिव निकाले, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस व्हाट, इट विल बी 24. सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप है, चलो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इक्वेशन को क्या बनेगा, आप इसको 3 को कॉमन ले सकते हो, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. अगर इसको फर्दर फैक्टराइज करें तो ये क्या बनेगा, इट विल बी दैट इज 3. फैक्टराइज करें इसको सिंपल, इट विल बी एक्स स्क्वायर, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2x माइनस 2x माइनस 4x, मिडल टर्म को क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो. अब क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा टर्म्स को हम कॉमन कर लेते हैं. क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, इट विल बी अगर हम यहाँ पर लेते हैं x को कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा x माइनस 2. यहाँ पर आप क्या कर लो, 4 को कॉमन ले लो, ये भी क्या बनेगा x माइनस 2. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, अभी आप यहाँ तक पहुँचे, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको क्या करने वाले हो, अगर इसको चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. फैक्टर्स मेरे पास क्या बने, x माइनस 2 x माइनस 4. अब क्या करो, अगले स्टेप में इस डेरिवेटिव को कर दो 0. सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, मेक डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0. अगर आप इसको 0 कर देते हो सेकंड स्टेप में तो आपके पास क्या बनता है, इट विल बी इक्वल टू, आपके पास बनता है x माइनस 2 x माइनस 4. आपके पास इक्वेशन के फैक्टर्स बने x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये आपके पास क्या बना, सेकंड स्टेप. ये आपने 2 स्टेप सीख लिया. अब देखो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 में से कौन सी वैल्यू मिनिमा है और कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन. तो बेटा हमने क्या करना है, आपके पास जो भी वैल्यू है ना, उसको पहले हम क्या करेंगे, उसको आप कर लो स्लाइटली लेस और उसको कर दो स्लाइटली ग्रेटर. आपको मैंने क्या बोला, थर्ड स्टेप क्या है, सपोज करो मेरे को मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 2 के विद रिस्पेक्ट. पहले तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी स्लाइटली लेस वैल्यू को सिलेक्ट कर लो. जो स्लाइटली लेस वैल्यू इसकी क्या बन सकती है, स्लाइटली लेस वैल्यू सिलेक्ट कर लो. सपोज मैंने वो सिलेक्ट कर लेती हूँ 1.9. और क्या करो, इसको आप दूसरी वैल्यू को ले लो, क्या, स्लाइटली, सेकेंड वैल्यू ले लो स्लाइटली ग्रेटर. स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू क्या बनेगी, 2.1. मैंने ये 2 वैल्यूज 2 के विद रिस्पेक्ट सिलेक्ट कर लिया. अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देखो, आपके यहाँ पर जो फंक्शन था, अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट करती हूँ, क्या था आपके पास, x माइनस 2 x माइनस 4, ये था वैल्यू. अगर मैं x माइनस 2 में x की वैल्यू को स्लाइटली लेस क्या लेती हूँ, 1.9 माइनस 2 और क्या था x माइनस 4 था, ये बना 1.9 माइनस 4. कैन यू सी योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी इन पॉजिटिव. आपका आंसर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा. ठीक है ना, स्लाइटली लेस लिया. अब मैं स्लाइटली ग्रेटर लेती हूँ. स्लाइटली ग्रेटर में अगर मैं वैल्यूज को पुट करूँ क्या बनता है, 2.1 माइनस 2 और क्या बनेगा 2.1 माइनस 4. यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बनती है, स्लाइटली नेगेटिव, है ना. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव. करके देख लेना कैलकुलेट. मुझे तो सिर्फ इनके साइन से मतलब है, मुझे अभी वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है. आई एम जस्ट लुकिंग कि अगर मैं x को स्लाइटली लेस करती हूँ तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव. जस्ट स्लाइटली ग्रेटर करने पर क्या आता है, अगर स्लाइटली लेस, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम स्लाइटली लेस to slightly greater, or if sign is changing from पॉजिटिव टू नेगेटिव. साइन किससे चेंज हो रहा है, स्लाइटली लेस पे साइन क्या था, पॉजिटिव. पॉजिटिव से अगर बेटा वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो समझो दिस इज अ मैक्सिमा. दिस इज व्हाट, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा मैक्सिमा. तो x के विद रिस्पेक्ट मैंने 2 लिया तो वैल्यू क्या बनी, मैक्सिमा. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू मैक्सिमा है. अब यही सेम
केस मैं लगाती हूँ किस पे, x इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, सो लेट्स आई हैव द नेक्स्ट वन। सपोज करो इसी को मैं सॉल्व करती हूँ बेटा x इज इक्वल टू 4 के लिए। तो x इज इक्वल टू 4 सबसे पहले मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ स्लाइटली लेस। स्लाइटली लेस वैल्यू क्या ले लो, 3.9, और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू सिलेक्ट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन मत रखो, सम कई बार आंसर्स नहीं निकलते, हम थोड़ी थोड़ी वेरिएशन ही रखेंगे। हम यहाँ पर इसको लेंगे स्लाइटली। सो अगर ऐसा है तो चलो यहाँ पर भी हम इसको भी वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइटली लेस वैल्यू 3.9 सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं करूँ यहाँ पर दैट इज 3.9 माइनस 2 और क्या है 3.9 माइनस 4, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ये आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, ये किस में आएगा, नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गए, नेगेटिव। अब सेकेंडली मैं स्लाइटली ग्रेटर लूंगी। स्लाइटली ग्रेटर अगर मैं लेती हूँ तो क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा क्या, दैट इज 4.1 माइनस 2 और 4.1 माइनस 4, वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। अगर मैं स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर में जाती हूँ और साइन चेंज किस में हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हमेशा मिनिमा होता है। ये क्या होता है, मिनिमा। सो दैट मीन्स कि इसमें x इज इक्वल टू 2 क्या है, मैक्सिमा है, और x इज इक्वल टू 4 क्या है, दैट इज द व्हाट, दैट इज द मिनिमा ऑफ अ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना पता चल गया। अब इन्होंने हमें क्या बोला, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालो। अब मैं इनकी वैल्यूज भी निकाल लेती हूँ। मुझे पता है x इज इक्वल टू 2 क्या है, वो मैक्सिमा है। देखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 फंक्शन में पुट करेंगे। अब मेरा लास्ट यहाँ पर पार्ट क्या है, आपकी x की वैल्यू जो भी आई है उसको फंक्शन में पुट करके देखो कि आपने जो रिजल्ट निकाला क्या वो ठीक है। मैंने x को क्या बोला, x इज इक्वल टू 2 क्या है, मैक्सिमा है। तो पुट करके देख लेते हैं क्या। सो हमने मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर ली। x इज इक्वल टू 2 मिनिमा था और x इज इक्वल टू 4 क्या, सॉरी x इज इक्वल टू 2 क्या निकाला था, मैक्सिमा, और x इज इक्वल टू 4 निकाला है मिनिमा। तो देखते हैं इसके विद रिस्पेक्ट फंक्शन की वैल्यूज क्या निकलती हैं। सो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 भरती हूँ, अपने फंक्शन पर आ जाओ, इट इज 2 क्यूब माइनस 9 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 क्या बनेगा आपके पास, तो कैलकुलेट करो। 8 2 2s the 4 9 4s the 36 plus 48, your answer will be what, ये आपके पास आएगा 20। सिमिलरली अब आप x इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू 4 के भी फंक्शन को निकाल कर देखो क्या करोगे। आप करोगे यहाँ पर 4 क्यूब माइनस 9 4 स्क्वायर और यहाँ पर क्या करोगे 24 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 64। 4 4s दा क्या 16, 9 इंटू 16 इज इक्वल टू व्हाट 144, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 96, और यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 16। सो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर, दिस वैल्यू इज अ लेस, और ये वैसे भी क्या है मैक्सिमा, और ये क्या है मिनिमा विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन। तो ऐसे निकालते हैं बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक और सम भी हम करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम 1 बाय 1 हम यही रूल्स लगाएंगे। ठीक है, लेट वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज, नेक्स्ट फंक्शन है, लेट मी चेक इट आउट द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, द फंक्शन इज, यहाँ से शुरू करते हैं ताकि पूरा सम, फंक्शन है बेटा आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2 स्क्वायर, ये फंक्शन है आपके पास। तो इसका बच्चे आपको मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, x माइनस 2 स्क्वायर, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो आप क्या करोगे, या इसको एक ही बात है, वैसे तो किसी को भी ले लो, पर मैं फर्स्ट टर्म को चलो कॉमन लेती हूँ। क्या बनेगा, x माइनस 1 क्या बनेगा, ये d बाई डी एक्स, एक्स माइनस 2 स्क्वायर, फिर हम क्या करते थे प्लस। अब इस फंक्शन को क्या ले लोगे, बाहर ले लो, और दूसरी इस इक्वेशन को, इस ब्रैकेट वाली इसको बाहर ले लो टर्म को, और दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म का क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशियल। ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब भी होती है, हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा हुआ है। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास
x माइनस 1, उसको सॉल्व करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 2। अब dx ये आपके पास क्या बन गया, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस अगला क्या बनेगा x माइनस 2 स्क्वायर, और ये क्या है पूरा फंक्शन 2 आ जाएगा ना, 2x माइनस x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 2 ये तो बाहर की टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव तो आपके पास सिर्फ क्या बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फर्दर, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 को अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कॉमन, इस पूरी टर्म में से अगर मैं x माइनस 2 को कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, और ये क्या बना x माइनस 2 3x माइनस 4। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को कर दो 0, इसको अगर मैं पूरा 0 कर दूं और x की वैल्यूज यहाँ पर क्या निकलेंगे, सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू प्लस 4/3। ये मेरे पास दो वैल्यूज निकल गई x की विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ आई विल सी कि इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है और कौन सी वैल्यू क्या है मिनिमा है, जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था जिसमें 0 कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने देखना है कि मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करना है। मैं x इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट मैक्सिमा वैल्यू देखूँ तो सपोज करो वो मैं ले लेती हूँ 2.1, स्लाइटली ग्रेटर लेनी है, स्लाइटली मैक्सिमा तो नहीं बोलेंगे, लिखो स्लाइटली ग्रेटर। और दूसरी वैल्यू क्या ले लेते हैं, स्लाइटली लेस मान लेते हैं 1.9। ठीक है, तो सबसे पहले लेस वाले से शुरू करेंगे। इस फंक्शन में लेस वाली वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पे स्लाइटली लेस वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या निकलती है। तो स्लाइटली लेस पे आप देखो 1.9 माइनस 2, 3 इंटू 1.9 माइनस 4। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, यहाँ पर तो मेरा क्या आएगा आंसर 1.9, ये आपके पास बनेगा माइनस 0.1। ठीक है, और यहाँ पर जरा देखें क्या बनता है, 3 9 27, 5.7 माइनस 4। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव में। रिजल्ट किस में आ रहा है, नेगेटिव में। अब इसके स्लाइटली ग्रेटर का भी देख लें। स्लाइटली ग्रेटर के विद रिस्पेक्ट आपने वैल्यू को क्या लिया हुआ है 2.1, तो जरा देखें 2.1 क्या निकलेगा, 2.1 माइनस 2, और ये क्या बनेगा 3 इंटू 2.1 माइनस 4। आंसर क्या आएगा, मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगी मेरी वैल्यू। अब आपका जो डेरिवेटिव है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैंने आपको क्या बोला था, स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर की तरफ मूव कर रहे हो। साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो वो क्या होता है, इट इज अ मिनिमा। इसको क्या कहते हैं, मिनिमा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 पॉइंट है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमा। अगला x इज इक्वल टू 4/3 को भी जरा वेरीफाई कर लें। तो कैसे करोगे, अब x इज इक्वल टू 4.3, इसको जरा निकालो, ये क्या है, दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 बनता है। क्या बनता है 1.3। इसकी स्लाइटली लेस वैल्यू, स्लाइटली लेस वैल्यू, बहुत कम लेस करना है, ज्यादा लेस नहीं करेंगे, 1.2। और स्लाइटली ग्रेटर को कर दो, स्लाइटली ग्रेटर उसको मान लो 1.4। तो चलो पहले स्लाइटली लेस वाली वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देखते हैं क्या आती है हमारी वैल्यू। वैल्यू थी इज इक्वल टू 1.3 माइनस 2, और यहाँ पर क्या निकलेगा, दैट विल बी 3 इंटू 1.3 माइनस 1.2 लिया ना, स्लाइटली लेस 1.2 माइनस 4। तो देखिए क्या बनता है, ये आता है हमारे पास माइनस में, और ये वाला रिजल्ट किस में आएगा, ये भी आएगा माइनस में। तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। स्लाइटली लेस में, अब स्लाइटली ग्रेटर 1.4 है, उसको भी लेकर देख लेते हैं क्या बनता है। वो बनता है 1.4 माइनस 2, और यहाँ पर क्या बनता है 3 इंटू 1.4 माइनस 4। ये क्या बना, ये तो रिजल्ट आएगा आपके पास नेगेटिव में।
और ये कितना आएगा रिजल्ट आपके पास, ये बनेगा 3 4 12, ये आपके पास आएगा रिजल्ट पॉजिटिव में। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव। अब आपका साइन स्लाइटली लेस से स्लाइटली ग्रेटर की तरफ मूव करते हुए साइन क्या जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। साइन कैसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो हमेशा क्या होती है, वैल्यू किसके विद रिस्पेक्ट आती है, फंक्शन के मैक्सिमा। तो 4/3 ये हमने 4/3 के लिए रिजल्ट निकाला था, तो ये क्या बना, मैक्सिमा। और जब हमने निकाला था किसके लिए, x विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हमारा क्या बना था, मिनिमा। ये क्या बन गया था, मिनिमा। तो हमने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम देख लेते हैं फंक्शन की वैल्यूज एट मिनिमा और एट मैक्सिमा। ये देखिए कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट है, अब फंक्शन में इन वैल्यूज को पुट कर देखेंगे। नॉर्मल फंक्शन में जो वैल्यू आपको दी हुई थी, आपने एक वैल्यू क्या निकाली, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 लेती हूँ तो क्या बनता है, ये बनता है 2 - 1। ये क्या बनता है, 2 - 2 स्क्वायर। ये तो पूरा क्या बन गया, 0। ठीक है, इसको हमने मिनिमा ही निकाला था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस फंक्शन की क्या निकाली है हमने, मिनिमम वैल्यू। सेकंड x 4/3 के विद रिस्पेक्ट भी कर लेते हैं। ये बना आपके पास 4/3 - 1, और ये आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास 4/3 - 2 स्क्वायर। तो इसको जरा कैलकुलेट करें, 4/3 - 1। एक बार इसके जरा वैल्यू को चेक कर लेते हैं, या चलो इसको कैलकुलेट ही करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा आपके पास, ये 4/3 - 1/3, ये बन गया आपके पास 1/3। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, अगर मैं इसको भी निकालूं तो ये बनेगा हमारे पास 3, और ये बना 4 - 6, ये होगा इसका स्क्वायर। क्या बनेगा, ये बनेगा 1/3 इंटू -2/3 स्क्वायर, और ये बनेगा 1/3 इंटू 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9, 4/27। ये बनेगी आपकी वैल्यू। ठीक है ना, 0 से तो ग्रेटर ही बनेगी आपकी वैल्यू। तो दिस इज अ मैक्सिमा वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। सो होपफुली आपको मैक्सिमा और मिनिमा अगर अच्छे से समझ में आया। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल। अब देखो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो देखो बेटा, पार्शियल डिफरेंशियल होते क्या है। सपोज करो आपको एक फंक्शन दिया है, उस फंक्शन में अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, अभी तक तो जितने भी आपने फंक्शंस किए उसमें सिर्फ हम x एक ही वेरिएबल मेंशन कर रहे थे। पार्शियल डिफरेंशियल हमें तब चाहिए होता है जब हमारे पास एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स आ जाए, एक ही फंक्शन में 2 वेरिएबल्स। एक एग्जांपल के साथ ही कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल ये आपको तब देखना है अगर एक ही फंक्शन में क्या है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तब हमें इसको देखना है। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। सो देखो इसको कैसे निकालते हैं। अब एक ही फंक्शन में मैंने आपको क्या बोला, 2 वेरिएबल्स। जैसे आपके पास z है, एक फंक्शन है z इज इक्वल टू x² प्लस xy प्लस y²। कैन यू सी, इस इक्वेशन में हमारे पास x और y 2 वेरिएबल्स है। तो बच्चों अगर आपको ऐसे सम्स पेपर में आते हैं और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन देखना है तो हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपका जो भी फंक्शन है, जैसे यहाँ पे z है इक्वेशन, बेटा इस z को सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट। y को क्या कर देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे। और अगली बार में हम क्या करेंगे, सिमिलरली वी विल डू नाउ द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल बाय कीपिंग x कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू dz बाय dx, y को क्या रखना है, कांस्टेंट। आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2x प्लस y, क्योंकि यहाँ पर हमने y को तो क्या रखा है, कांस्टेंट, ये तो हो जाएगा 0। सिमिलरली
सेकेंड टाइम में मैंने इसको क्या किया, dz बाय dy लिया बाय कीपिंग व्हाट, x कांस्टेंट। तो ये तो पूरी वैल्यू 0 बन गई, x को तो कांस्टेंट लिया था। आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा आंसर x प्लस 2y। सो बेटा हम ऐसे निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। बेसिकली दिस डिफरेंशिएशन वी डू व्हेन अ फंक्शन कंटेन टू वेरिएबल्स इन अ सिंगल इक्वेशन। तो अभी अगर आपको ये भी समझ में आया होपफुली अच्छे से कैसे हम निकालते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ मैथ्स, दैट इज इंटीग्रेशन। अभी जो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। सपोज करो आपके पास एक है वैल्यू, क्या है आपके पास y है, ठीक है। इस y को अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं और वो इक्वल पार्ट्स हैं dy, सो बेटा अगर मैं इस फंक्शन y को फाइनाइट टाइम्स में डिवाइड कर दूं और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है वो सपोज करो dy है, तो बेटा ये फाइनाइट टाइम के लिए इनको डिवाइड किया है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसका सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, इसका सम हमेशा किसके इक्वल होगा, dy के इक्वल होगा। पर सपोज इस फंक्शन y को अगर इनफाइनाइट टाइम के लिए डिवाइड कर दिया जाए, तो कभी भी हम फिर समेशन नहीं लेते। अगर इनफाइनाइट टाइम के लिए आप डिवाइड कर दो तो वहां पर हमें इस फंक्शन को लेने के लिए हमें dy को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आपको समझ में आया व्हाट इज द इंटीग्रेशन। अगर फाइनाइट टाइम्स में डिवाइड है तो हम सिंपली समेशन करके भी क्या y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हाँ, अगर इस फंक्शन को इनफाइनाइट टाइम्स के लिए आप स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ता है, इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। सो देखो अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ इसके छोटे छोटे मेथड्स हैं, छोटे छोटे इसके फंक्शंस हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं ध्यान से समझो। आर सम फॉर्मूलाज फॉर द इंटीग्रेशन। जरा इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज क्या है। सपोज करो आपके पास फंक्शन है x रेज टू पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसे इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला है xn+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। सेकेंड फंक्शन सपोज करो आपके पास है 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, दैट इज ऑलवेज log x प्लस c। सपोज करो थर्ड आपके पास है जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, लेट यू हैव दिस इक्वेशन ax प्लस b रेज टू पावर एंड यहाँ पर जो c है ना, दिस इज फॉर कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा dx दैट विल बी इक्वल टू ax प्लस b n+1 a n+1 प्लस c। फोर्थ अगर आपके पास है सपोज करो 1/ax प्लस b, अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है दैट विल बी इक्वल टू, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे इट विल बी इक्वल टू 1/a log ax प्लस b प्लस c। सपोज करो अगर आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज sin x dx, that will always be equal to minus cos x plus c। or suppose if you have what, you have here cos x dx, it will always be equal to sin x plus c and so on। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कुछ यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ हमारे पास क्या है फॉर्मूलास हैं, इनको बस ध्यान में रख लो। अगर आपको ये कुछ फॉर्मूलास याद में रहेंगे तो आप इंटीग्रेट इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 3-4 एग्जांपल्स लिख रही हूँ, उन एग्जांपल्स के बेसिस पे इन सब मेथड्स को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सपोज करो आपके पास एक इक्वेशन है, राइट, एक सम देखो, लेट यू हैव दिस x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x रेज टू पावर 2 प्लस
7x प्लस 6, ठीक है, आपके पास ये है। और आपको इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आपको इस फंक्शन को क्या करना है, आपको इसे करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसे इंटीग्रेट करने के लिए इन साइड टर्म्स को हम कर देते हैं थोड़ा सेपरेट। x इज टू पावर 4 dx, x क्यूब dx माइनस 2x क्यूब dx, फिर क्या है आपके पास प्लस 7x dx, देन यू हैव प्लस 6 dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5 प्लस ये क्या बनेगा x रेज टू पावर 4 प्लस 4। ये बोला था ना जो भी रेज टू पावर है उसमें ऐड कर दो, ठीक है ना, यही कर रहे हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय 3, ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा प्लस 7x क्यूब बाय 2, और ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 6x, ठीक है ना। और ऑब्वियसली प्लस c तो आपको देना ही है। दिस इज द फर्स्ट सम जो हमने इंटीग्रेट किया। सपोज करो अब आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है एक और सम लेकर देख लेते हैं। लेट यू हैव अ सम दैट इज sin 3x प्लस 1 dx। अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है, अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी साइन होता है, साइन को इंटीग्रेट करना होता है, ये क्या होता है माइनस cos 3x प्लस 1 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 3। तो ऐसे करते हैं हम इसको इंटीग्रेट। तो चलो एक और भी सम करके देख लेते हैं। लेट यू हैव अ सम दैट इज इक्वल टू नेक्स्ट सम है। सपोज आपके पास इट इज, आपको इंटीग्रेट करना है किसको, आपको इंटीग्रेट करना है sin 2x sin 4x dx। इसको आपको करना है इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या करो, इस पूरे इंटीग्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दो। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 साइन है sin 2x sin 4x dx, ठीक है। ये किसके इक्वल बन गया, ये बन गया आपके पास 2 sin a sin b। बेटा 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ, क्या बनेगा ये cos a को, इसको a मान लो और इसको मान लो b, एक ही बात है ना, हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos 4x माइनस 2x, और क्या बनेगा माइनस cos 4x प्लस 2x dx। अब क्या करो, अब इसे देखो हाफ, ये आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास cos 2x, और ये क्या बना माइनस cos 6x dx। अब आप इसे करो, आप इस क्या बनेगा हाफ, इनको सेपरेट करो टर्म्स को, cos 2x dx माइनस cos, ब्रैकेट में मत लिखो इसको, है ना, cos 6x dx। हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अब क्या बनेगा आंसर, बनेगा आंसर हाफ, cos को जब भी लेते हैं cos 2x का क्या हो जाएगा, ये बनेगा sin 2x बाय 2, और ये क्या बनेगा माइनस, ये बनेगा sin 6x बाय 6 प्लस c। तो बेटा ऐसे निकालते हैं इंटीग्रेशन। काफ़ी सम से इंटीग्रेशन के, बस आप इनके कुछ ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलास हैं, मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, इसको बस ध्यान में रखना। तो आप इस तरह से इंटीग्रेशंस को निकाल सकते हो। सो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मैक्सिमा, मिनिमा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, और इनके ऊपर सम्स ना आए इट इज़ नॉट पॉसिबल। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा वैल्यूज, लोगैरिथम, उनकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, तो बेटा इनके ऊपर तो सम्स हमेशा एग्जाम्स में आते ही आते हैं। सो होपफुली आपको ये सारे जो सम्स हैं, ये सब मेथड्स हैं, सारे मैथमेटिकल टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।